Hello, dear students. I welcome you to today's class. So, children, we are right now carrying on with this chapter. We have started this chapter long back, and many topics we have completed. So, we are carrying on with this chapter, the making of regional culture. Got it, children? Different regions in India, there are people who are practicing various cultures. We have discussed about few of them. Some of them that we have discussed has given us an insight into the cultures and traditions and customs that are followed in India. Got it, children? So what we are understanding here is right now the cultural tradition that is very prominent in the hilly regions of Kangra, Himachal Pradesh. This is an art form that has been very common in Bengal, in Himachal Pradesh, and it came up to be as the Kangra painting school. School is given this. This great respect is given to those art forms which have inspired many people and in which art form many people are involved. काफ़ी सारे लोग इस आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व रहते हैं एंड द वे दे कैरी ऑन विद देयर वर्क, जिस तरह से वो अपना काम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दैट मेक्स दैट कल्चर एंड दैट मेक्स दैट आइडिया कम अप टू बी एज अ स्कूल. ठीक है, एक स्कूल के रूप में हम उसको देखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये कहाँ से, हाउ डिड दिस कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट द इंस्पिरेशन? Majorly the source of inspiration was Vaishnav traditions. क्या था? Vaishnavite traditions. Soft colors were there used, cool blues, greens. मतलब कि this is what that we have been doing in the last class, where I had explained you that these colors were मतलब major जो पेंटिंग बनी है उसका जो थीम कलर है, इट इज ईदर ब्लू और ग्रीन. गॉट इट चिल्ड्रन? सो ordinary women were there, men were there, they painted. ओके ऑन अच्छा, खाली ऐसा नहीं था कि पेंटर्स वेयर ओनली पेंटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दिस मुगल आर्टिस्ट, क्योंकि क्या होता था, ये हमने जो yesterday in the last class we have studied about the invasion of नादर शाह. किसी और कंट्री के लोग, rulers, when they used to invade in our country, they used to be very cruel. They used to be very arrogant towards the Indians. तो क्या होता था कि painters, the kind of respect they were getting in the Mughal court, the same kind of a respect they were not getting here. Okay, so Mughal artists escaped to foothills of Himalayas. क्या होता था कि the way they thought कि the way Mughal emperors were respecting them, will they get the same respect under नादर शाह? क्या नादर शाह के अंडर में? तो ये क्या होता था, जैसे ही इन्वेशन होता था, द मुगल एम्परर्स हैव लॉस्ट इन द वॉर में भाई कोई जीतता है कोई हारता है. सो जब ये हार जाते थे तो इनके यहाँ के जो पेंटर्स थे, दे यूज्ड टू गो टू अदर प्लेसेस. तो सम ऑफ देम वेंट टू राजस्थान, सम ऑफ देम वेंट टू डेक्कन रीजन. ठीक है, कुछ लोग साउथ में चले गए एंड सम ऑफ देम वेयर इन द कांगड़ा वेंट टू. एंड व्हेन दे स्टार्टेड पेंटिंग, ये जब पेंटिंग्स बनाते थे, याद रखिएगा कि नॉट ओनली ग्रेट पेंटर्स बट दे ऑल्सो यूज टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्डिनरी विमेन एंड मैन. ठीक है, ऑर्डिनरी men and women also painted. They also painted. Okay. Many times it happens कि
regional place and some local place. Some people are involved into some business. कुछ वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि बाकी के लोग भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं. The other people also get inspired by that. Got it? So that was there. Women and men, they were painting on pots, walls, floors, cloth. कहाँ पे? They also painted. कहाँ पे पेंट करते थे? On pots, walls, floors. जमीन को सजाने का भी एक आर्ट है ना, यू नो, ऑल दैट रंगोली एंड ऑल. ऑफ कोर्स एवरीबडी, कितने लोगों के घर में बनता भी होगा, isn't it? So when you come to the online session, please do discuss it with me कि how many of you, आप लोगों के कितने लोगों के घर में ये इस तरह की पेंटिंग्स बनती होंगी. Okay? And colors were there, soft colors were there. अच्छे अच्छे कलर्स वो यूज करते थे. वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लॉथ पे, lot of painting and lot of art was happening. Work of art that have occasionally survived. Okay, so work of art बहुत सारे, तो मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बनाए, वर्क ऑफ आर्ट that rarely survived. हर जगह नहीं मिलेगा, एवरीवेयर यू वोंट गेट इट. ओके, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स वेर देयर दैट वेर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द पैलेसेस फॉर सेंचुरीज. 100 सालों तक इस तरह की पेंटिंग्स एम्परर्स बनवाते थे. द एम्परर्स यूज्ड टू गेट मेड सच पेंटिंग्स दैट सर्वाइव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और ऐसी पेंटिंग्स वो बनवाते ही थे सो दैट द कमिंग जनरेशन शुड नो अबाउट दीज पेंटिंग्स. आने वाले लोगों को इन पेंटिंग्स के बारे में, आने वाले जनरेशन्स को इन पेंटिंग्स के बारे में पता रहे. गॉट इट? That was the way the work used to carry on. Okay, now what happened? Miniatures that were there, miniatures were painted. यहाँ पे one example that is not given in your book, but I would definitely like to give this example, and you might be knowing about it. बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा about it, and that is, I am talking about, my dear children, मधुबनी painting. कभी सुना है? Of course सुना होगा. You might have definitely heard about it. ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, some of the beautiful paintings which is alive from thousands of years. I would like to use the word thousands of years. हजारों सालों से ये आर्ट फॉर्म आज तक जिंदा है. तो ये जो हम हजारों सालों की बात कर रहे हैं, the thousands of years we are talking about, these paintings are preserved the way it was painted long back. And अभी तो मधुबनी पेंटिंग के धोती मिलती है, कुर्ते हैं, चादरें हैं. ठीक है, बिहार, इन झारखंड, इन एंड अराउंड झारखंड, मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी फेमस. Got it? So it just came to my mind and I just wanted to share it with you. तो ये आप सोचो मधुबनी पेंटिंग्स का क्या ट्रेडिशन है and how मधुबनी पेंटिंग्स have been so popular, so common. Got it? Please try to understand about these Madhubani paintings. Now what has happened? Ordinary women and men, they were painting on pots, walls, and pots, walls, फ्लोर्स, क्लोथ, ये सारी चीजें. भाई बड़े बड़े एम्परर्स के जो पैलेस थे, द बिग पैलेसेस दैट वर देयर, वहां पे द थिंग्स आर प्रिजर्व्ड. ऑल द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड इंटैक्ट. लेकिन बाकी की जगहों पे जो चीजें हो रही थी, द थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट वेरी स्मॉल लेवल, घरों में बैठ के जो पेंटिंग्स हो रही थी, दोज पेंटिंग्स कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ पेंटिंग. अब हम क्या पढ़ेंगे? नाउ नेक्स्ट आर्ट फॉर्म. ठीक है, एक बार फिर से आपको हल्का सा आई विल रिवाइज.
I will just give you a revision work for whatever we have done. सबसे पहले हमने बात किया था केरला के बारे में. We talked about Kerala and we talked about Malayalam language. Second, we talked about Jagannath cult and Orissa. पुरी के बारे में बात किया हमने. Okay. Next, we talked about Rajasthan. राजस्थान की पोएट्री, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इतना सारा जो हमको पता है अबाउट राजस्थान, द ग्रैंड्योर, द ग्रेट पीपल, ऑल दिस दैट वी नो अबाउट राजस्थान, दैट इज वेरी क्लियर टू अस. हमको बहुत अच्छे से पता चला अबाउट द ग्रेट डीड्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट सोल्जर्स. ठीक है. राजस्थान का करने के बाद व्हाट वी हैव डन, इसके बाद हमने बात किया अबाउट कथक, द स्टोरी ऑफ कथक. दीज ऑल आर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. कथक में हमने क्या बात किया, ये वो लोग थे जो वंस अपॉन ए टाइम मंदिरों में बैठ के कथा सुनाते थे. कथा, स्टोरी इन द ओल्ड फॉर्म्स वाज नोन एज कथा. तो वो नाच के गा के जो लोगों को बताते थे, they used to sing and dance and show it to the people, spread the message of God to the people. These people were called as the Kathaks. Got it? क्या कहते थे इनको? हम कथक्स कहते थे. ये एक हमने समझा. ओके. एंड देन most important, we have been talking about the miniature paintings, art form. Children, here I would like to tell you one thing very clearly. Lot of art forms that are there. इतनी सारी जो art forms हैं that are surviving in India. ठीक है. Different kinds of art forms that is surviving in India. It is because of these paintings that have been there. History इतनी सारी जो लिखी गई. So much of history that we know. लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे बैठते थे, होली कैसे मनाते थे, how did they celebrate, how did the emperors go for the war, कैसे पता चलता है? How do we come to know about it? It is, my dear children, through the paintings, through the miniatures. Got it? Yes, that is what. ये हम लोगों ने कर लिया. अब हम एक नई चीज करेंगे. ठीक है. A new topic, एक नया culture. So many cultures we have talked about, and culture, my dear children, please remember, is the art, is the form through which people identify themselves. लोग कल्चर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं. पीपल कनेक्ट देमसेल्व्स विद द कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. हमारे को देख के पता चल जाता है हमारा कल्चर क्या है. Nobody needs to. I never told you about my culture, but the other class when we were interacting, जिस समय हमारी बातें हो रही थी, I asked you about my culture. All of you told me, "No, ma'am, you are a Hindu person, and I mean you are from UP, so your language is also." सबको मेरे culture के बारे में पता है. Did I tell you about my culture? I did not. So after looking at me, after interacting with me, you came to know about my culture. आदमी को देख के उसका कल्चर पता चल जाता है. Okay, so this was all about the Mughal paintings, the miniature paintings that had happened and that have left an impact on the minds of people, on the minds of the generations, forthcoming generations that are there. All this culture are very clear. Got it? Now what we are doing, now what we will be talking about, we are going to another state. ठीक है. क्योंकि because for paintings we have talked about Rajasthan and we have talked about Kangra Valley, the Kangra School of Art. Now we are going to have a closer look on another region. क्या है? That is a closer look. किस जगह का देखेंगे? Closer, बहुत पास से स्टडी करेंगे. We will be studying this region and this culture in a very nearby manner, in a very intricate manner.
किस जगह के बारे में हम बात करेंगे? चिल्ड्रन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट बंगाल। हाँ, हम केरला घूम चुके हैं, हम उड़ीसा घूम चुके हैं। वी हैव गॉन टू केरला, वी हैव गॉन टू उड़ीसा, वी हैव गॉन टू और हम कहाँ गए? हम गए थे राजस्थान, हम गए थे यूपी। सो मेनी प्लेसेस वी हैव बीन टू। इतने जगह हमने घूम लिया। फिर हम कांगड़ा वैली भी गए थे। देन वी हैव ऑल्सो गॉन टू डेक्कन रीजन, देन वी हैव गॉन टू द मुगल कोट। इतनी जगह घूमने के बाद नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू बंगाल। गॉट इट चिल्ड्रन? सो दिस इज वेयर वी विल बी looking for. This is the place that we will be talking about. Okay, so closer look, that is Bengal. बंगाल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? We will be talking about the growth of regional language. हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? We are talking about the language. एक हमने language पढ़ा था when we had started the chapter. One language we have understood about the Malayalam language when we had started the chapter. Now, my dear children, we are talking about the regional language, that is Bengali. ठीक है? Language that is spoken by the people is also one of the major phenomena, one of the basic characteristics through which we identify somebody's culture. Got it? So when we are understanding culture, language plays a very important role, right? So here we are talking about the Bengali language. हम ये बात करते हैं, every time we say that the people who are living in Bengal always spoke Bengali. कि बंगाल में रहते हैं तो बंगाली में ही बात करते होंगे, आज भी बात कर रहे हैं, 100 साल पहले भी बात कर रहे होंगे. बट इट इज नॉट दैट. इट इज नॉट दैट, माय डियर चिल्ड्रन. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit. Imagine the people who are speaking the Bengali language, they have derived this from Sanskrit. It's amazing, isn't it? It is a very new thing. Okay, please understand that Bengali language derived from Sanskrit. क्या है? संस्कृत लैंग्वेज से ही ये बंगाली लैंग्वेज की शुरुआत हुई. इट इज अ न्यूज, अ वेरी न्यू थिंग. कैन यू इमेजिन? कहाँ संस्कृत है, कहाँ बंगाली है? लेकिन इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट फर्स्ट मिलेनियम BCE, मतलब कि पहले, आज से 2000 साल पहले, द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेजेस. तो हाउ डिड दिस न्यू लैंग्वेज इमर्ज? ये जो नया लैंग्वेज वो बोलते हैं, ये कैसे बंगाली बना? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, वी विल बी ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ बंगाली लैंग्वेज. बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट बंगाली. एक्चुअली इन ओरिजिनलिटी इट इज संस्कृत. हा हा हा, वेरी न्यू इंफॉर्मेशन. ओके, सो people of Bengal did not speak Sanskritic languages. Okay, please understand, 2000 years back, that is 1 millennium BCE, ठीक है, the people in Bengal did not speak Sanskritic languages. जो मतलब the language that they are speaking today, वो language वो पहले नहीं बोलते थे. They were not speaking and they were not talking in that language, Sanskritic language. तो ये नया language कहाँ से आया? From where this new language had come? तो लेट्स गो टू द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, सो वी विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. बंगाली लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे. क्या है? 4th
3rd century BCE, 4th to 3rd century BCE। अभी BCE का मतलब समझो, एक होता है CE, एक होता है BCE। Now today I'll definitely explain the concept of BCE, my dear children. Like this is the timeline, ठीक है, टाइमलाइन है ये, हम कहाँ पे हैं, वी आर इनटू 2021, ठीक है, यहाँ पे हम हैं 2000, तो 2000 में आए हैं तो कभी तो जीरो भी रहा होगा, सो सपोज दिस इज द जीरो, ठीक है, तो 1 से लेके 2000 ईयर्स हो चुके हैं, वी हैव पास्ड फ्रॉम जीरो, वी हैव कम टू 2021। देयर आर सम डेट्स, पहले भी तो हिस्ट्री रही होगी, मेनी टाइम्स वी टॉक अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये क्या था, इट वॉज सिटी दैट एग्जिस्टेड अराउंड 2500 to 3000 years back. So the dates of Harappa civilization, it dates back to BCE. तो ये जो this period that is here, ये जो सारा है, this is CE, और जीरो के पहले का जो टाइम है, ठीक है, दिस इज ऑल जो इधर जाता है, ऑल द टाइम दैट इज गोइंग दिस साइड, ठीक है, ऑल द टाइम दैट इज गोइंग पीछे वाला जो टाइम है दैट इज BCE। और हम किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 4th to 3rd century BCE। गॉट इट? सो ये जीरो है, तो दिस इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4। तो we are talking about this period, मतलब 2000 plus 300 सेंचुरी की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंचुरी, एंड 1 century is equal to 100 years। गॉट इट? तो हम BCE की बात कर रहे हैं, तो फॉर 3rd century मतलब 2300 years बैक। कमर्शियल टाइज बंगाल एंड मगध के बीच में काफी सारे बिजनेस होते थे, ठीक है, देयर वेयर कमर्शियल टाइज बिटवीन बिहार, मतलब प्रेजेंट डे, आज का बिहार, उस समय it was Magad and Bengal। मगध एंड बंगाल के बीच में, मगध कहाँ था, इट वॉज साउथ बिहार, प्रेजेंट साउथ बिहार, ठीक है, साउदर्न रीजन जो है बिहार का, उस रीजन को हम ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि देयर वॉज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। बंगाल के लोग दूसरा लैंग्वेज बोल रहे थे, मगध के लोग दूसरी लैंग्वेज बोल रहे थे, सो द पीपल इन मगध एंड द पीपल इन बंगाल वेर टॉकिंग अबाउट 2 different languages, my dear children। तो 4th century में क्या हुआ, ठीक है, between, now please understand that they were talking about influence of Sanskrit started growing, okay, which led to growth of संस्कृत। मगध के लोग बंगाल में जा रहे हैं, बंगाल के लोग मगध आ रहे हैं, तो ये जो एक टाई था, दिस बिजनेस अटैचमेंट दैट वाज देयर ना, दैट गेव राइज टू दिस न्यू लैंग्वेज। ये एक नए टाइप का लैंग्वेज डेवलप हो रहा था, ओके। एंड गुप्ता रूलर्स, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल के ऊपर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। बिहार एंड बंगाल आर वेरी नियर बाय। अभी आई शो इट टू यू इन द मैप, ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी। तो व्हाट हैपेंड, गुप्ता रूलर्स were capturing North Bihar,
नॉर्थ बंगाल, आई एम सॉरी, नॉर्थ बंगाल। बंगाल का नॉर्थ रीजन कौन सा है? आई विल शो इट टू यू इन द मैप माय डियर चिल्ड्रन। तो क्या हो गया, देयर वॉज लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गंगा वैली। गंगा वैली के पास से इनका जो टाई था, इनका जो अटैचमेंट था, इट ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता गया। हाँ, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा एरिया बिहार है, कौन सा एरिया बंगाल है। दे वर सो वेल टाइड टू ईच अदर। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग, ठीक है, द टाइज वेर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके बीच का जो एक अटैचमेंट था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो चाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग, देखिए, ही केम टू चाइना से बहुत सारे लोग आते थे इंडिया में। He observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. तो Chinese traveler Zhuang Zhang came to visit India and observed that Sanskrit language was spoken everywhere. Sanskrit language was spoken. Got it? हर जगह संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। Was spoken in Bengal. Majorly he was talking that it was spoken in Bengal. ओके, ये तो यहाँ की कहानी हो गई। इसके बाद की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आई हैव टू शो यू द मैप। गॉट इट चिल्ड्रन? चलो लेट्स सी द मैप। Students, yesterday we had seen this Kangra Valley painting, पहाड़ी miniature। देखो यहाँ पे it is also mentioned as पहाड़ी, पहाड़ों पे जो आपको ड्राइंग मिलती है, पहाड़ों पे जो आर्ट फॉर्म मिलता है, द पहाड़ी miniature that was found in Kangra. This is what is shown here. Got it children? अब आज जो हम लोगों ने पॉइंट शुरू किया है डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अबाउट बंगाल, अ क्लोजर लुक फॉर बंगाल। हाँ, इसमें व्हाट आई वांटेड टू शो यू चिल्ड्रन, व्हाट आई वांटेड टू शो यू दैट हाउ डिड द लैंग्वेज सीम टू लुक इन द प्रीवियस टाइम्स। लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस थी एंड हाउ वॉज लैंग्वेज पोर्ट्रेट, कैसे लैंग्वेज दिखाया गया। आप हमको लैंग्वेजेस के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। ये देखो, दिस इज़, प्लीज सी, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली रामायण। रामायण रिटन इन सो मेनी। तो ये बंगाल में ये रामायण हमको एक पाम लीफ के ऊपर से ये हमको मिला है, वेयर दिस काइंड ऑफ अ राइटिंग वॉज देयर, दिस काइंड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन वॉज देयर, वेयर वी अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल वेयर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किस तरह कर रहे थे, ये आप देखो, इसकी बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं। The Bengali people claim that it is from the Sanskrit language. Okay? संस्कृत लैंग्वेज से ही इनका लैंग्वेज इंस्पिरेशन मिला है। ये यहाँ पे इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। Another thing I wanted to show you the map, dear students. Just now, हमने पहले भी मैप डिस्कस किया हुआ था, ये देखो। तो अब जो हम जगह की बात कर रहे हैं, दिस इज बिहार एंड ये आप बंगाल देख रहे हैं, ये सारा दिस इज ऑल बंगाल। तो ये साउथ बिहार के जो लोग, उस समय पहले जो साउथ बिहार, मगध वाज हियर ओनली, अभी इट इज़ झारखंड, बट द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, एट दैट टाइम इट वाज नॉट झारखंड,
This was all Bihar, and they have captured the complete northern Bengal. पूरे नॉर्दर्न बंगाल पे मगध का ही राज था, यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू ऑन मैप कि दे वर वेरी क्लोज। तो इनकी भाषा इनको इन्फ्लुएंस करती थी और इनकी भाषा इनको इन्फ्लुएंस करती थी। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ओके चिल्ड्रन, चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।